Namaskar and pranam to all of you. Myself, Fasid Governmental Guru. Again, I am coming back to my channel. Today, I will discuss winner MCQ 1. It is first part. CCS Live Rules 1972. It is updated one. 10 MCQs with explanation. You know that CCS Live Rules 1972 again updated on 18th October 2023. So on this basis I have prepared because EMRS principal examination is around the corner. So you see 10 MCQs with explanation. Please subscribe my channel, share my channel and like my channel so you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start 10 MCQs with explanation related to the CCS Live Rules 1972. It is winner MCQ 1. You see the first question, it is given Central Civil Services Live Rules 1972 applied to. Three statements given. Which of the above statements are correct one? Only हमको correct statement को dictate करना है. Now question pattern is like this. First statement, it is given government servants appointed to the civil services, government servants connection with the affairs of the union, persons serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration. तो इसमें देखिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज ये करेक्ट है. जो सीसीएस लिव रूल्स 1972 अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज. Second statement, government servants connection with the affairs of the union. Yes, it is absolutely correct one. Those government servants, basically they are connecting with the affairs of the union. Also, CCS Live Rules 1972 also applied for them. Third one, person serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration. Suppose any employee is coming from state government or from any other source and now he is working under a central government department for a limited duration. Actually CCS Live Rules 1972 is not applied for them. इनके लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट में थे एंड अभी लिमिटेड पीरियड के लिए वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को आए हैं. कि सपोज एनी अदर ऑटोनोमस बॉडी में वो काम कर रहे थे और अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आए हैं डेपुटेशन में लिमिटेड पीरियड के लिए, उनके लिए सीसीएस लिव रूल्स 1972 एप्लीकेबल नहीं होगा. तो दोनों स्टेटमेंट्स जो करेक्ट लगाया वही आंसर करेक्ट है 1 and 2. तो चॉइस इट इज गिवन, सो आंसर बी इज करेक्ट वन, राइट. नेक्स्ट वन, it is given you just to remember short title and commencement. It is rule 1. Rule 1, these rules may be called the Central Civil Services Live Rules 1972. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This rule shall come into force on the first day of June 1972. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है. तो 1st June 1972 okay, CCS Live Rules okay actually came into force, right. नेक्स्ट वन, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन. ये जो रूल्स है किसके लिए एप्लीकेबल होगा और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा देखेंगे. दीज रूल्स शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज. मैं बोल चुका हूं जो गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्विसेज में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और दो पोस्ट बेसिकली कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. ओके, सो दो चीज आपको यहां पर रिमेंबर करना है. सीसीएस लिव रूल्स अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स दोज who got appointment to the civil services and those government servants basically they are working and it is connected with the affairs of the union. उनके लिए CCS Live Rules 1972 applicable है. मगर मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए applicable नहीं है, ये बहुत इंपोर्टेंट है. but shall not apply to रेलवे सर्वेंट्स के लिए applicable नहीं है. पर्सन्स इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो कैजुअल वर्कर्स है जो पार्ट टाइम में काम करते हैं और जो कैजुअल वर्कर्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिंजेंसीज उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स
जो वर्कमैन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, persons locally recruited for service in diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। persons locally recruited for service in diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries, उनके लिए applicable नहीं है। persons employed on contract except when the contract provides otherwise, केवल उनके लिए applicable नहीं है। persons in respect of whom special provisions have been made by or under the provisions of the constitution or any other law for the time being in force, इनके लिए applicable नहीं है। persons governed for purposes of leave by the fundamental rules of the civil service regulations, उनके लिए applicable नहीं है। persons serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration, तो आपको याद रखना है ओनली जो applicable है basically those people they are getting appointment under civil services and those employees they are working and connected with the affairs of the union, applicable है। अदर जैसे चाहे रेलवे एम्प्लॉइज हो कि ऑल इंडिया सर्विस, बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट्स, दोज एम्प्लॉइज दे आर कमिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज डेपुटेशन फॉर लिमिटेड पीरियड, ओके, ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसको अच्छे से रिमेंबर करना है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यू सी द क्वेश्चन, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। यहां पर देखिए व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हम देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, एक्चुअली जनरली हम देखेंगे लीव एक राइट नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली जो करेक्ट है, एक राइट नहीं है, जो हम लीव ले रहे हैं वो राइट नहीं है। When the exigencies of public service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, ये भी करेक्ट है, क्योंकि कभी कभी आप लीव के लिए अप्लाई किया है और वो भी सैंक्शन हुआ है, मगर in case of some emergencies leave authority can revoke the service or बेसिकली रिफ्यूज टू सैंक्शन द लीव, क्योंकि कभी ऐसा कुछ एक्सीजेंसीज आ जाता है और कुछ इमरजेंसी आ जाता है जिसमें पब्लिक सर्विस बहुत जरूरी है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे मस्ट रेंडर सर्विस टू द पब्लिक। सपोज फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर टाइम गवर्नमेंट बेसिकली लीव अथॉरिटी रिवोक और रिफ्यूज टू सैंक्शन द लीव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज एट दैट टाइम people need the help of the government servants, okay, because we are working and getting salary and basically we must render service to the public in time. So ये statement correct है। The leave authority has right to alter the kind of leave due and apply for, नहीं ये नहीं, कोई alter, जैसे आप अप्लाई किया, आप लीव अप्लाई किया, ये गलत है, ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आप लीव अप्लाई किया सीएल को, तो मैं इसको सपोज लीव अथॉरिटी आपका सपोज सर्विस बुक में है, ड्यू है, जैसे ईएल है, अर्न्ड लीव है, आप ईएल अप्लाई किया और मैं इसको सीएल को चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं लीव अथॉरिटी हूं, ये गलत है, नहीं होगा। तो लीव अथॉरिटी के पास वो राइट नहीं है कि वो आपका लीव जो ड्यू है आप अप्लाई किया है और उसको वो कन्वर्ट कर देगा, उसको चेंज कर देगा, ये नहीं है, राइट नहीं है, गलत है, ठीक है। Leave to a government servant who is unlikely to be fit to return to duty shall not be refused or revoked without referring to the medical authority whose advice shall be binding। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है who is unfit to do work and in this case actually the leave authority cannot refuse or cannot revoke the leave without reference to the medical authority whose medical authority advice is binding, because he is not fit for the work. So at that time the leave authority cannot revoke or cannot refuse, okay। तो वहां पर क्या है, मेडिकल अथॉरिटी का रिफरेंस लिया जाएगा और वो जो एडवाइस देगा वो एडवाइस बाइंडिंग होगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है। अभी जो फोर्थ स्टेटमेंट आपका समझ में आ गया,
द पर्सन हु इज नॉट फिट फॉर वर्क, और वो लीव के लिए अप्लाई किया, और उस केस में लीव अथॉरिटी वो लीव को रिफ्यूज नहीं कर सकता, और लीव सैंक्शन हुआ है और उसको लीव अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या करेगा वो, लीव अथॉरिटी मस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी एंड हुज एडवाइस इज बाइंडिंग, राइट। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज बीट सी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, राइट टू लिव। यहां पर देखा रूल 7, रूल 7 को भी याद रखना है। राइट टू लिव, लिव कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। ये लिव एक राइट नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वही एक्सीजेंसीज का बात आया, इन सम इमरजेंसीज और इन केस ऑफ सम एक्सीजेंसीज, सपोज एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक साइक्लोन और अर्थक्वेक और सुनामी, ओके। और इस केस में क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका लीव को कैंसिल कर दिया जाए, जो अप्लाई किया है और सैंक्शन हुआ है उसको रिवोक कर दिया जाए, और जो अप्लाई किया है लीव के लिए उसको रिफ्यूज कर दिया जाए, क्योंकि इन एक्सीजेंसीज एंड इमरजेंसीज एक्चुअली द पब्लिक दे नीड हेल्प, सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इट मींस दे मस्ट एक्सटेंड देयर हेल्प टू द पब्लिक, राइट। तो वही दिया है, when the exigencies of public service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, okay, but it shall not be open to that authority to alter, ये दिया है, to alter the kind of leave due, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अल्टर। सपोज आपका लीव ड्यू है, सपोज आपका ईएल है, ठीक है, अर्न लीव है, आप अप्लाई किया है, उसको लीव अथॉरिटी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों, वो राइट नहीं है लीव अथॉरिटी के पास। वो बोलेगा नहीं ईएल को मैं एचपीएल को कन्वर्ट कर दूंगा, कि ईएल को मैं सीएल को कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये राइट नहीं है, समझ रहे हो। मगर आप लीव के लिए अप्लाई किया है, एक्सीजेंसी केस में, इमरजेंसी केस में उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। लीव अथॉरिटी कैनॉट सैंक्शन, लीव अथॉरिटी हैज रिफ्यूज टू सैंक्शन, एंड सैंक्शन हुआ है तो लीव अथॉरिटी रिवोक इट, ये पावर है, मगर कोई लीव को अल्टरनेट नहीं करेगा, ओके। लीव अथॉरिटी के पास वो राइट नहीं है, ओके। फॉर एक्सेप्ट, हाँ, आप रिटन रिक्वेस्ट देते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटन रिक्वेस्ट करता है कि मैं ये लीव अप्लाई किया था और मुझे ये लीव नहीं चाहिए, उसको मुझे अदर लीव चाहिए, तो ये हो सकता है। एक रूल है, आप जानते हो, आप जैसे लीव ले लिया, ईएल ले लिया, और आप आकर फिर लेने लीव जब आपका खत्म हो गया, आप ज्वाइन कर लिया, तो जिस डेट में आप ज्वाइन किया उसका 30 डेज के अंदर आप लीव को कन्वर्ट कर सकते हो, मगर ये एम्प्लॉय के पास पावर है। जैसे मैं ईएल लिया, अर्न लीव लिया, लेने के बाद आकर फिर ज्वाइन कर लिया, जिस डेट में मैं ज्वाइन किया उसका 30 डेज के अंदर मैं ईएल को कन्वर्ट कर सकता हूं, चाहे ईएल को सीएल को, कि ईएल से एचपीएल को, कि लीव नॉट ड्यू, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो वैसे ही सैलरी एडजस्ट होगा, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, मगर 30 डेज के अंदर। जिस डेट में मैं ज्वाइन किया, लीव से रिटर्न आ गया, ज्वाइन किया, उसका 30 डेज के अंदर ये हो सकता है। मगर जो लीव अथॉरिटी, उसके पास पावर नहीं है कि एक एम्प्लॉय का लीव ड्यू है, वो अप्लाई किया है और वो उसको अल्टर कर रहा है, ये राइट नहीं है। और जो रूल 20 दिया गया है, बेसिकली द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट फिट टू डू वर्क एंड ही हैज अप्लाइड फॉर लीव, and in that case actually leave authority cannot refuse it, leave sanction हुआ है, cannot revoke it, but in that case actually the leave authority need the help of actually medical authority, and medical authority instruction is binding in that case। ये रूल 20 में दिया गया है क्लियरली, आप CCS लीव रूल्स 1972 रूल 20 में क्लियरली है, if the person is not fit to do work and he has applied for leave, so in that case leave authority cannot refuse it, or leave authority cannot revoke the leave of the person who is not fit to do work. So in that case actually just leave authority take the reference of the medical authority and whose advice, okay, shall be final one, right? Question number 3, no government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding dash। आप देखिए रूल 12 CCS लीव रूल्स 1972 इसमें क्लियरली दिया गया है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years, 5 years से ज्यादा नहीं। यदि कंटिन्यूअस लीव होगा
5 ईयर से ज्यादा हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन दे दिया। तो 5 ईयर से ज्यादा हो गया मीन्स ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन दे दिया। तो आंसर जो है बिट सी है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रूल 12 देख लीजिए, सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 12। आगे में डिस्कशन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एनी एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव शैल बी मेड इन डैश टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। ये जो एप्लीकेशन फॉर लीव है ना, उसका फॉर्म क्या है? यानी एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव, एक फॉर्म होता है, जो फॉर्म है वो फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे कि ये लीव मेरा ड्यू है और मैं ले सकता हूं, वो फॉर्म में। और ग्राउंड, उसमें एड्रेस है, ऑन व्हिच ग्राउंड आई वांट टू टेक लीव, फ्रॉम व्हिच डेट टू व्हिच डेट, ओके, एड्रेस एवरीथिंग, ओके, एंड देन just it means we have submitted in the office and then actually approval is required, okay, from the लीव अथॉरिटी। नहीं, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म 1 है, ये आंसर बिट ए है। हम जो लीव अप्लाई करते हैं वो फॉर्म 1 है। यानी एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव शैल बी मेड इन फॉर्म 1 टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। आंसर इज बिट ए, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, when a government servant is unable to submit an application or medical certificate on account of a disability, such application or medical certificate may be signed and submitted by, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। when a government servant is unable to submit an application or medical certificate on account of a disability, सपोज आपको लीव लेना है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट डिसेबल है और वो लीव के लिए एप्लीकेशन जमा नहीं कर पा रहा है, कि वो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है लीव लेने के लिए, वो जमा नहीं कर पा रहा है, तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम हु सबमिट द एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑब्वियसली वो मैरिड है तो उसका स्पाउस सबमिट करेगा। द पेरेंट्स, अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट केस में पेरेंट्स, फादर मदर दे सकते हैं। यदि चाइल्ड है, चाइल्ड का जो है वो मेजोरिटी एज होना चाहिए, 18 ईयर्स क्रॉस करना चाहिए, माइनर नहीं करेगा। द चाइल्ड इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चाइल्ड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, ये भी कर सकता है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसका जो ब्रदर सिस्टर है, और बेसिकली एज मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रदर सिस्टर भी वो भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। सपोज द गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसेबल वन एंड ही इज अनेबल टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर लीव और अनेबल टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर लीव, इन दैट केस स्पाउस है, वो मैरिड है तो स्पाउस है, और अनमैरिड है तो पेरेंट्स है, और उसका चाइल्ड है जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी एज ऑफ मेजोरिटी मीन्स मोर देन 18, और उसका जो नेक्स्ट सपोज ब्रदर सिस्टर है वही एज ऑफ मेजोरिटी, वो भी सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इज बी डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलो एप्लीकेशन फॉर लीव, जो रूल 14 है यहां पर क्लियरली दिया है, एप्लीकेशन फॉर लीव, एनी एप्लीकेशन फॉर लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव शैल बी मेड इन फॉर्म 1 टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। तो हमको जो एप्लीकेशन देना है लीव के लिए फॉर्म 1 में देना है, प्रोवाइडेड दैट, यहां पर क्लियरली दे दिया, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनएबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, अभी मैं बोल रहा था, ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी, सच एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट में बी साइंड एंड सबमिटेड बाय, ये दे दिया। स्पाउस है, स्पाउस दे सकता है, अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट अनमैरिड है तो वहां पर पेरेंट्स दे सकता है, चाइल्ड दे सकता है मगर एज ऑफ मेजोरिटी, ब्रदर सिस्टर भी दे सकते हैं, ब्रदर सिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं बट एट इन द एज ऑफ मेजोरिटी। एंड अनदर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी, एनी पर्सन हु हैज बीन असाइन्ड लिमिटेड गार्डियनशिप ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो 49 सेक्शन है 2016 का, the same shall be deemed to have been made and submitted by the government servant himself, ये भी हो सकता है। सपोज गार्डियनशिप आप यहां पर आ जाता है, आप देखिए सेक्शन 14 ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसमें क्लियरली मेंशन है, सपोज जिसको गार्डियनशिप राइट मिलेगा वो भी दे सकता है, राइट। इसको थोड़ा आपको देखना है, ये रूल 14 में क्लियरली मेंशन किया गया है, सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 14 में, ठीक। जो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसेबिलिटी है और ऑन बिहाफ ऑफ हिम हु सबमिट द एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन। चलो नेक्स्ट वन,
Question number 6, dash which is not recognized as leave under these rules shall not be combined with any other kind of leave admissible under these rules. आपको याद होगा जो कैजुअल लीव है, जो सीएल है, जिसको हम कैजुअल लीव बोलते हैं, सीएल है, सीएल एक्चुअली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। सीएल को रिकॉग्नाइज, ये राइट नहीं है हमको सीएल लेने का, कैजुअल लीव लेने का एक राइट नहीं है, विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और ये जो सीएल है, कैजुअल लीव है, ये किसके साथ कंबाइन नहीं होगा, कोई अदर लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। आप सीएल लिया है, आप चाहते हो कि कंबाइन कर दोगे ईएल के साथ, की एचपीएल के साथ, की लीव नॉट ड्यू, की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, की कम्यूटेड लीव, की स्टडी लीव, इसके साथ किसी लीव के साथ ये कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर मिल गया, dash which is not recognized as leave under these rules shall not be combined with any other kind of leave admissible under these rules. Answer is casual leave. Answer is bit D. Right? चलो कुछ रूल 11 कॉम्बिनेशन उसी के ऊपर दे दिया गया। एक्सेप्ट as otherwise provided in these rules, any kind of leave under these rules may be granted. और कोई जो भी लीव है सीएल के अलावा, जस्ट यू एक्सेप्ट सीएल, अदर टाइप ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विथ अदर्स। भैया एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दीज रूल्स मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विथ और इन कंटिन्यूएशन ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, बट कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइंड नहीं होगा। कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विथ अदर काइंड ऑफ लीव्स, बट अदर काइंड ऑफ लीव्स, यू नो, सपोज ईएल कैन बी कंबाइंड विथ एचपीएल, कम्यूटेड लीव, स्टडी लीव, ईएल की मैटरनिटी लीव, की पैटर्निटी लीव, ये कंबाइन होगा, अदर लीव कंबाइन होगा, मगर सीएल किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल 11 में दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट का, ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अनलेस द प्रेसिडेंट in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines a government servant who, ये जो है इसको एरज आउट में कर देता हूं क्योंकि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आंसर करेंगे, देखिए क्वेश्चन, जस्ट यू रीड द क्वेश्चन। अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस otherwise determines a government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding 5 years other than on foreign service with or without leave। तो अभी मैं बताया था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो कंटिन्यूअस, उसका चाहे वो लीव में है कि विदाउट लीव में है, यदि कंटिन्यूअस वो लीव में रहता है और वो 5 इयर्स एक्सीड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वो जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। और कुछ कुछ केस में क्या है, प्रेसिडेंट इट मींस चाहेंगे तो सपोज द पर्सन इट मींस हैज टेकन लीव फॉर कंटिन्यूअस 5 इयर्स, इट मींस मोर देन 5 इयर्स, सो उसको रिप्रीव कर सकते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो इस केस में वो एक्चुअली फॉरगिव कर सकते हैं। और अदर केस में यदि कंटिन्यूअस लीव 5 इयर्स से ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन दे दिया। मगर जो फॉरेन सर्विस में है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्सीडिंग 5 ईयर अदर देन ऑन फॉरेन सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन है जो 5 इयर्स जो है कंटिन्यूअस लीव है, मगर बस फॉरेन सर्विस केस में नहीं है, ओके। अदर देन ऑन फॉरेन सर्विस, ओके। इफ कंटिन्यूअसली इफ यू टेक लीव एंड इट एक्सीड्स 5 इयर्स देन इट शैल बी डीम्ड टू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, ये माना जाएगा कि वो रेजिग्नेशन दे दिया, ओके। तो आंसर मिल गया, आंसर इज बिट ए, आंसर इज ए, ओके। जो रिमूव्ड डिसमिस्ड टर्मिनेटेड नहीं है, रिजाइंड है, रिजाइंड करेक्ट है, ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो सर्विस से रेजिग्नेशन दे दिया, राइट। देखिए रूल 12 दिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 इयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लीव आप 5 ईयर से ज्यादा नहीं ले सकते, और मोर इफ इट एक्सीड्स 5 इयर्स देन ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन दे दिया। कुछ कुछ केस में क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहेंगे तो सपोज लीव मोर देन 5 इयर्स है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको फॉरगिव कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेबल होगा ना मोर देन 5 इयर्स, सपोज आप एब्सेंट हो गए, चाहे लीव लिया कि लीव नहीं लिया, मगर वो एक्सीड्स 5 इयर्स हो गया, ये मान लिया जाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। मगर ये जो आपका सर्विस होगा अदर देन फॉरेन सर्विस, ये फॉरेन सर्विस, आप फॉरेन सर्विस में है और वो आपका जो लीव है मोर देन 5 इयर्स वो अलग है, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अदर देन ऑन फॉरेन सर्विस आपको याद रखना है, ठीक है।
और ये केस में, डिसेबिलिटी केस में नहीं होगा। डिसेबिलिटी केस में क्या है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है तो आपका लीव मोर देन 5 years होगा, ये वही दिया, प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू ए केस वेयर लीव इज अप्लाइड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये नहीं होगा। ओके, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, आप डिसेबल हो, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है एंड यू हैव टेकन लीव फॉर मोर देन 5 years, सो इन दिस केस एक्चुअली दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, रूल 12 में क्लियरली मेंशन है। चलो नेक्स्ट, a leave account shall be maintained in dash for each government servant by the audit officer in case of gazetted government servant and by the head of the office or an officer authorized by him in the case of non gazetted government servant। देखिए गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका जो लीव अकाउंट है, आपका सर्विस बुक में लीव अकाउंट है, तो कितना लीव है, आप लीव लिया, कितना लीव बाकी है, ये सब लीव अकाउंट होता है। उसको जो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो लीव अकाउंट ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करता है, और जो नॉन गेजेटेड है वो बेसिकली हेड ऑफ द ऑफिस। तो आपको यहां पर दो चीज याद रखना है, ऑडिट गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट लीव अकाउंट मेंटेन बाय द ऑडिट ऑफिसर एंड इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट लीव अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफ ऑफिस। और ये कौन सा फॉर्म है, ये जो लीव अकाउंट मेंटेन करने के लिए यहां पर दिया है, देखिए 4 ऑप्शन। ये लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन इन डैश फॉर ईच गवर्नमेंट सर्वेंट, तो फॉर्म 2 में मेंटेन होता है, क्योंकि फॉर्म 1 में हम अप्लाई करते हैं लीव के लिए, फॉर्म 2 में लीव अकाउंट मेंटेन होता है, आप कितना लीव लिया, लेने के बाद कितना लीव बच गया, ओके, वो सब मेंटेन होता है फॉर्म 2 में। और यहां पर याद रखना है, गेजेटेड ऑफिसर के लिए लीव अकाउंट मेंटेन बाय द ऑडिट ऑफिसर एंड फॉर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीव अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, ठीक है। यहां पर लीव अकाउंट दे दिया, वही चीज है, मगर यहां पर एक नोट देख लीजिए, यदि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी हम सोचा कि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव अकाउंट कौन मेंटेन करता है, ऑडिट ऑफिसर, नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का हेड ऑफ द ऑफिस। और यहां पर दिया है, यदि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पे एंड अलाउंसेस आर ड्रॉन एंड डिस्पर्स्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, यदि उसका पे जो है कि अलाउंसेस है उसको मेंटेन करता है हेड ऑफ ऑफिस और वो डिस्पर्स करता है हेड ऑफ द ऑफिस, देन लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। अदरवाइज जनरली हम ये मानते हैं कि जो लीव अकाउंट है गेजेटेड ऑफिसर का वो ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करता है, मगर यहां पर थोड़ा नोट में थोड़ा डिफरेंट दिया, इसको भी याद रखना है। यदि द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट whose pay and allowances are drawn and dispersed by the head of the office, then head of the office maintain the leave account of the गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नॉर्मल केस में आप जानते हो, और ये जो लीव अकाउंट मेंटेन होता है फॉर्म 2 में होता है, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे, और ये जो देख लिया ना रूल 15 लीव अकाउंट, आप रूल 15 देखिए, रूल 15 में, ठीक है, रूल 15 में लीव अकाउंट है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ए गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अकम्पनीड बाय ए मेडिकल सर्टिफिकेट इन डैश गिवन बाय ए डॉक्टर इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम dispensary if such a government servant is a central government health scheme beneficiary, or by a government hospital, or by an authorized medical attendant if he is not a central government health scheme beneficiary for grant of leave। तो आप जानते हो, आप मेडिकल लीव लेते हो तो गेजेटेड सर्वेंट के लिए सीजीएचएस सपोज है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी सब है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी है, वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देगा और हॉस्पिटल देगा, और यदि सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है, ठीक है, तो ये किस केस में गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 3 जो है, ओके, एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो सबमिट करेगा वो फॉर्म 3 में सबमिट करेगा। आप सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी है, जो सीजीएचएस हॉस्पिटल है वहां पर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाओगे और सबमिट करोगे। और आप सीजीएचएस बेनिफिशियरी नहीं हो तो आप सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में, ओके, सीएसएमए रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल है, तो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है एएमए, उनसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाओगे। तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म 3, आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट में छुट्टी लेना चाहते हो, जैसे कम्यूट करना चाहते हो, 2HPL को मेडिकल केस में मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप जो 2HPL को एक होल में कन्वर्ट करके कम्यूटेड लीव ले सकते हो। तो इस केस में फॉर्म 3 आपको सबमिट करना होगा गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, शैल बी अकम्पनीड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट इन डैश गिवन बाय डॉक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी
इफ सच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो मैं अभी बताया नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कम्यूटेड लीव के लिए। कम्यूटेड लीव में क्या है ना, 2 HPL को हम एक होल डे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वहां पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, सपोज आप CGHS बेनिफिशियरी है तो CGHS हॉस्पिटल जो है वो देगा। तो आप CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में नहीं आते हो, तो आपके लिए सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है, तो उसमें ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट देगा। और नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा वो फॉर्म 4 में देगा। तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 3 है मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए, और जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए फॉर्म 4 है। तो आज ये 10 क्वेश्चंस था, ये मेरा विनर MCQ 1 था। अभी आप देखिए एवरी डे क्वेश्चंस आएगा। तो EMRS प्रिंसिपल एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, इन मंथ ऑफ December it will be conducted, so please you go through it, so definitely you will get very important information. So आज इतना ही, थैंक यू एंड नमस्कार to all of you.